find something positive in every situation. We are talking about the lockdown time. Due to COVID-19, we have a lockdown, and out of which we are trying to find something positive. Positivity in finding ourselves, searching ourselves, improving ourselves. We thought about doing a SWOT analysis of our own to find out the strength and the weaknesses. Then we also talk about getting knowledge, technical knowledge, system knowledge, skill development knowledge, and utilize this time for our betterment. And now we go to next point, that is adapt to change. So change is a very important thing. I think you can also believe that whenever there is a change, अगर कोई चीज़ हमें बदलने को बोलते हैं, even in our home, if you want to change the arrangement of our house, that is the bed and TV and cupboard and everything, we have restriction to do that. So everybody doesn't want to go for a change. He has a negative mindset about change. So we have to go beyond that mindset. Very important is to break that mindset, because a lot of things are going to be changed. Example, we think maybe 15 years back, when 20 years back, when computers were very new, it was not used in the banks, and every bank has a written or hand writing documentation. And when computers come to the banks, everybody, there was a huge issues been created in the banks कि हमको कंप्यूटर नहीं आता है, कंप्यूटर बैंक में आएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, हाउ इट कैन बी वर्क, तो इश्यूज क्या आएंगे, ये सारी चीज़ें आ गई. लेकिन अब एवरीबडी यूज टू दैट कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है. अब कंप्यूटर से आगे जाके हम मोबाइल में आ गए. जब नोटबंदी हुई थी, वी हैव फोर्स फॉर चेंज टू गो फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. और अभी आप देख रहे हैं कि कितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, कितने ज़्यादा तादाद में हम कर रहे हैं, कितने लोग उसमें काफ़ी हद तक माहिर हो गए. जिनको वो टाइम पे डर लगता था, नाउ दे कैन डू इट इजीली, बिकॉज दैट वाज द चेंज फोर्स ऑन अस. तो चेंज कई तरीके होते हैं. कई बार हम वी आवर सेल्फ अडॉप्ट अ चेंज, कई बार हमारे ऊपर उसको थोप दिया जाता है, और कई बार वो अपने आप आ जाता है, वेयर यू हैव टू एक्सेप्ट इट. दो जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, डायनासोर और नोकिया. डायनासोर, एज यू नो, इट वॉज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. But today we don't have a dinosaur because he has not adopted the change happening in the nature, happening in the environment, happening in the living life. और उसके वजह से he got vanished. Similar thing with the Nokia. Nokia was one of the best phone in the world few years back. It was having a Windows version, but that Windows version does not adopt the changes of Android and all these facilities coming in the market. So somehow that phone has been vanished. और अभी शायद Windows की बहुत कम फ़ोन हमें देखने को मिलते हैं, because they are not adapted to the situation. Similarly, we can say BSNL, Post, many things are in same direction going along. कि बहुत सारी, जैसे टाइपराइटर इज वन ऑफ द थिंग. पहले टाइपराइटर वाज यूज्ड इन कोड एट many एरियाज, बट नाउ दैट प्लेस हैज बीन टेकन ओवर बाय कंप्यूटर्स. सो चेंज इज गोइंग टू कम. आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, इट विल गोइंग टू चेंज. ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज रेडी फॉर द चेंज. आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर रहना है. अभी फाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो फाउंड्रीज में भी चेंज होने वाला है. यू ऑल नो अर्लियर देयर वाज क्यूपोला furnaces, you are going to the induction furnaces. ये भी एक चेंज था. You all working in hand molding culture earlier, now they are machine molding, and now again high pressure lines are coming up. So these are the revolution or changes happening in the era of foundry industry. There is one more change coming up, is the loss foam. We have one webinar tomorrow on loss foam. Loss foam आ रहा है. So maybe green sand molding के कुछ लोगों को वहाँ पर चेंज का सामना करना पड़ेगा. उसी तरह से बहुत बड़ा चेंज हमारे दरवाजे पे आके खड़ा रुका है. दैट इज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर कमिंग अप, एंड व्हाट विल हैपन टू द फाउंड्रीज, व्हाट विल हैपन टू द एग्जिस्टिंग व्हीकल्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन आवर माइंड. बट दैट चेंज विल गोइंग टू हैपन नॉट टुडे or tomorrow or somewhere, but we have to prepare ourselves mentally.
We have to prepare ourselves for that change. So adopting change is very important. We have to adopt change. यहाँ पर एक लिखा जो वर्ड है वो है द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट। जो हम सीखते हैं उसकी जो कैपेसिटी है इट इज गिफ्ट गिवन बाय गॉड। द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल। जो हम सीखते हैं, जो एबिलिटी हम अपनी बनाते हैं, दैट इज अ स्किल। द विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस। लेकिन अगर आपकी इच्छा है नहीं है, दैट इज योर चॉइस। सो आपको चेंज होना है नहीं होना है, दैट इज योर चॉइस। इफ यू वांट टू चेंज, you will remain in the race. You doesn't accept the change, you will out of the race. That is so simple. अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, you follow the change, you accept the change, you adopt the change, you will be in the race. अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आप उस चेंज को निगलेक्ट करोगे या फिर वो चेंज से बाहर रहोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी आउट ऑफ रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कई बार खुद के लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं वेयर वी आर सेफ। जैसे कि बचपन में हम घर में रहते हैं, सो विद आवर फादर मदर एंड बिग ब्रदर विद आवर एल्डर्स फैमिली मेम्बर्स, वी आर सेफ देयर। बाहर बारिश हो, कुछ हो, कुछ भी हो, सो वी आर ऑलवेज सेफ इन आवर होम। तो एक कंफर्ट जोन रहता है। लेकिन जब वी हैव टू गो आउटसाइड एंड deliver, then you have to break your comfort zone. This is very important. और जिसके लिए एक कहानी है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। एक कहानी है जहाँ पर एक राजा था एंड ही विजिटेड अ किंगडम। एक दूसरे किंगडम में वो जाके वहाँ पर उसको दूसरे राजा से मुलाकात की। वो दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और जाते जाते उस राजा ने इस राजा को एक अच्छा वाला एक बर्ड यानी एक पक्षी भेज दिया। तो जब वो दो पक्षी उन्होंने भेज दिए, तो दो पक्षी को लेके वो राजा बहुत खुश हो गया। उन्होंने देखा वो पक्षी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, उससे उसे बहुत लगाव हो गया। तो उसने राज्य में ये घोषणा कर दी कि दो पक्षी जो मुझे इस राजा ने भेज दिया है, वांट टू कीप देम सेफ एंड कीप देम ग्रोइंग। तो उनको मुझे अच्छी तरह से रखना है, इनको आके बहुत अच्छा बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं अलग से एक आदमी रखूँगा जो इन पक्षियों के लिए देखभाल करे, इनको सिखाए, उनके देखभाल करे, इनको ग्रो करने में मदद करे। और इसलिए उसने एक आदमी को अपॉइंट किया और वो आदमी के पास से दोनों पक्षी दे दिए। कुछ दिन बीतने के बाद वो राजा को याद आ गया, अरे वो दो पक्षी मुझे दिए थे, अभी तो शायद बड़े हो गए होंगे और वो पक्षी ने कुछ सीखा भी होगा, तो जाके देखेंगे उन पक्षियों को। तो वो राजा निकलता है, वो आदमी के पास पहुँचता है और आदमी को पूछता है, मैंने जो आपको दो पक्षी दिए थे, मैं उनको देखना चाहता हूँ, उन्होंने क्या क्या प्रगति की है, मैं उनको निहारना चाहता हूँ। तो जब भी वो बोला ठीक है, राजा को बोला कि आपको दिखाता हूँ, आइए आप। तो वो लेके गया, दोनों पक्षियों को दिखाया तो अच्छे खासे हो गए थे, अच्छे खासे दिखने लगे थे। तो फिर बोला इन्होंने कुछ तो सीखा होगा, मुझे इन दो पक्षियों को उड़ते हुए देखना है, कैसे उड़ते हैं, कहाँ तक उड़ते हैं। तो फिर वो जो आदमी था उसने दोनों पक्षी को हवा में फेंक दिया, उनको बोला कि आप उड़ो। जब फ्लाई करने लगे तो एक पक्षी तो बहुत ऊपर आसमान की तरफ निकल गया। तो उसे देखकर राजा बहुत खुश हो गया कि इतने अच्छी तरह से फ्लाई कर रहा है, इतने ऊंचे आसमान पे जा रहा है, वो बहुत खुश हो गया। तभी उसकी नज़र दूसरे पक्षी पर गई और दूसरा पक्षी क्या करता था, थोड़ा ऊंचा जाता था। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक डाली थी, वो अब डाली के ऊपर बैठता था, फिर कुछ देर के बाद फिर ऊपर उड़ता था, फिर डाली के ऊपर बैठता था। सो ही वॉज नॉट ट्रैवलिंग हाई, तो वो ऊंचा उड़ नहीं रहा था, ऊंचा फ्लाई नहीं कर रहा था। तो राजा ने बोला, अरे एक ही साथ में आपको दोनों पक्षी दिए, आप ही एक ही साथ उनको संभाला है, एक ही साथ तालीम दी है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो ऊंचा उड़ान भर रहा है, दूसरा इतना ऊंची उड़ान क्यों नहीं भर रहा है, क्या फ़र्क है? तो बोला मुझे भी समझ नहीं आ रहा है राजा जी, इसके बारे में मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ। तो फिर राजा अपने राज दरबार में जाता है, लोगों को अपील करता है कि ऐसा ऐसा है, और जो भी उस दूसरे पक्षी को ऊंची उड़ान भराना सिखाएगा उसे मैं मुंह बोली रकम दे दूंगा, मुंह बोला गिफ्ट दे दूंगा। तो लोग, बहुत सारे लोग खुश हो गए, कुछ लोगों ने कुछ ट्राई करना चालू किया। ऐसे में कुछ दिन बीतने के बाद राजा के पास एक दिन एक खबर आई कि वो जो दूसरा पक्षी था जो कम उड़ान भरता था, अब वो लंबी उड़ान भरने लगा है। तो राजा बहुत खुश हो गया। राजा बोला मुझे देखना है, और ये किसने किया, वो उससे भी मुझे
मिलना है। तो बोला एक फार्मर है, उस फार्मर ने इसके ऊपर काम किया था, तो फार्मर को बुलाता है। फार्मर बोलता है कि फार्मर को राजा पूछता है कि आपने क्या किया कि ये उतना ऊंची उड़ान भर पाया है। तो फार्मर बोला मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने जब इस पक्षी को देखा तो बार बार एक ही डाली के ऊपर बैठ रहा था, तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने जाके उस डाली को काट दिया। मैंने क्या किया, उस डाली को काट दिया, और जैसे उस डाली को काट दिया ये ऊंची उड़ान भरने लगा। मतलब वो जो पक्षी था उसके लिए वो डाली कंफर्ट जोन बन गई थी। जब भी वो थक जाता था तो वो डाली के ऊपर बैठ जाता था, और फिर थोड़ा ऊपर जाता, फिर डाली के ऊपर बैठता। जब वो डाली काट दी तो उसको समझ में आया कि अभी बैठने के लिए मेरी जगह नहीं है, अभी बैठने की मेरी जगह खत्म हो गई है, तो उसे और कोई चारा नहीं था कि ऊंची उड़ान भर पाए। तो इस तरह से कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम कोई कंफर्ट जोन में आके बैठते हैं। टेक्निकली भी, हमारी कंपनी में भी, हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं जहाँ पर हम आगे अपने आप को आगे एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। उस कंफर्ट जोन में रहना हम पसंद करते हैं, कुछ चैलेंजेस नहीं लेते हैं। कई बार एक्सपांशन में हो, या फिर मैनेजमेंट डिसीजन में हो, या फिर कुछ नया कर दिखाने में हो, हम आगे नहीं बढ़ आते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। हमें लगता है कि जो कुछ भी चल रहा है ठीक है मेरे लिए, उसमें मैं खुश हूँ, और इसीलिए हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे हमारी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंज। इंटेलिजेंट मतलब होशियारी। जब भी आपको चेंज को अडॉप्ट करना है तो उसकी एबिलिटी आपका इंटेलिजेंस दिखाती है। आप जितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे उतनी आप उस चेंज को अडॉप्ट जल्दी करोगे, आपका माइंडसेट जल्दी चेंज करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चेंज ही आपको आगे लेके जाने वाला है। अगर आप चेंज हुए तो आप उस फ्लो के साथ, उस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे वो चेंज तो क्या होगा, आप स्ट्रीम से बाहर निकल जाएंगे, आप इस फ्लो से बाहर निकल जाएंगे, आप उस रेस से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए चेंज को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। क्रिकेट में T20 चालू हो गया है। जिन जिन लोगों ने T20 को अडॉप्ट किया, जिन जिन लोगों ने T20 के फॉर्मूले को अडॉप्ट किया, जिन जिन लोगों ने T20 की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उन क्रिकेटरों का करियर आगे बढ़ा। जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया उन लोगों का करियर बहुत जल्दी खत्म हो गया, बिकॉज दे हैव नॉट अडॉप्टेड दैट चेंज। आप एग्जांपल ले सकते हो कि राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी है, उसने भी इस चेंज को अडॉप्ट किया। यू कैन सी ही हैज कमिंग एज ओपनर। राजस्थान रॉयल के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की है IPL में, बिकॉज ही हैज अडॉप्टेड दैट चेंज। दो ही इज अ टेस्ट प्लेयर, ही हैज रेपुटेशन ऑफ द वॉल, बट ही हैज डन perfectly well in T20 also because he has adopted the change, his mind has adopted the change। और जब आप कोशिश करते हो, जब आप एक सच्चे दिल से कुछ चेंज की तरफ देखते हो तो यू कैन अडॉप्ट एनी चेंज। ओनली थिंग इज योर विलिंगनेस टू अडॉप्ट द चेंज। दैट विलिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप विलिंगनेस आप में है तो यू कैन एबल टू अडॉप्ट द चेंज। नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योर सेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं अभी बात कर रहा था वही है कि आप में एक पावर है जो आपको चेंज करवा सकता है। आपका चेंज जो है आप उसको हासिल कर सकते हो। दैट पावर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे कि अभी उदाहरण आपको दिया राहुल द्रविड़ का, ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट आई कैन डू दैट। ही हैज़ नॉट गॉन फॉर बिग शॉट्स, ही हैज़ नॉट गॉन फॉर द बिग थिंग्स, ही जस्ट ट्राई टू कीप द रोटेशन, ही हैज़ जस्ट ट्राई टू डू वॉट एवर बेस्ट ही कैन डू विथ योर स्किल्स। तो जब तक आप उसको चेंज को अडॉप्ट करने का आपके दिमाग में नहीं है, जब तक वो विलिंगनेस आप में नहीं है, तब तक आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। इट्स अ पिरामिड शिफ्ट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ पिरामिड शिफ्ट, इट्स अ टोटल चेंज फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल। अब हम बात कर रहे हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल की, मतलब जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हमने अभी तक सीखा है, टेक्निकली हो, सिस्टम्स में हो, या फिर स्किल डेवलपमेंट में हो, यू हैव टू चेंज दैट थ्योरी टू प्रैक्टिकल। हमें उसको प्रैक्टिकल में तब्दील करना है। हमेशा ही मैं एक बात कहता हूँ कि जब भी आपको कोई स्किल सीखना है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैं फिर से क्रिकेट की बात लेता हूँ, हमें यू हैव टू बिकम अ गुड बैट्समैन। आपको अगर अच्छा क्रिकेट का बैटिंग अच्छी करनी है तो व्हाट विल डू, यू विल लिसन अ कमेंट्री। उससे क्या होगा, यू विल गेट सम मोटिवेशन, यू विल गेट सम नॉलेज।
यू सी द मैचेस, आप टीवी के ऊपर मैचेस देखेंगे, आप स्टेडियम में जाकर मैचेस देखेंगे, उससे क्या होगा, आप थोड़े से अलग स्किल सामने वाले के देख पाओगे। तीसरी चीज़ है, यू मीट द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलेंगे, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से बात करोगे, सो यू गेट सम मोटिवेशंस, उसके साथ सेल्फी निकालोगे, यू गॉट सम मोटिवेशन। बट विल ऑल दीज थ्री थिंग्स विल इम्प्रूव योर बैटिंग? प्रॉबेबली नॉट। चौथी चीज़ है, आप पैड पहने हैं, बैट हाथ में लिए हैं और हवा में आपने बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, विल दैट इम्प्रूव योर बैटिंग? टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इट विल जस्ट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर mobility or skills, but whether it will really improve your skill, no, it will not. It will improve your skill when you face actual ball coming to the bat. जब आप एक्चुअली बैटिंग करने जाओगे और सामने से गेंद आएगी 90 किलोमीटर्स पर आवर, 120 किलोमीटर्स पर आवर, 140 किलोमीटर्स पर आवर, और उसके सामने आप खुद फेस करोगे, देन योर बैटिंग स्किल विल गेट इम्प्रूव। अनलेस एंड अनटिल आप जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हो, जस्ट एन एडिशनल थिंग, उससे इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी स्लो एंड वेरी लेस। तो उससे आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन पाओगे जब तक आप खुद वहाँ पर जाके पैर बांध के खुद उस गेंद का सामना नहीं करोगे। मैं हमेशा एक और एग्जांपल देता हूँ, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी बड़े आदमी हो, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फिजिकल फिटनेस, व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू गो टू जिम एंड मेक पुशअप ऑन योर ओन। आप किसी को पैसा दे के पुशअप लगा के अपनी सेहत नहीं बना सकते हो। जब को आपकी सेहत आपको बनानी है, तो यू हैव टू गो टू जिम योरसेल्फ एंड यू हैव टू पुट योर ओन पुशअप बाय योर ओन वे। तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको थ्योरी से प्रैक्टिकल में तब्दील करना है। तो यू विल नॉट एबल टू, उसमें आप पैसा देके किसी से नहीं करवा सकते हो। आपका सांस ले रहे, किसी को पैसा देके आपकी सांस लेने को बोल नहीं सकते आप उसको, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इवन टुडे साइंस कि अब मुझे सांस लेने में तकलीफ है, आप मेरी सांस ले लो, इतना पैसा ले लो, लेकिन मेरी सांस लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। यू हैव टू टेक योर ओन ब्रेथ बिकॉज यू हैव टू लिव योर सेल्फ। तो आपको खुद की सांस खुद लेनी है, एंड दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी टू प्रैक्टिकल। अगर आपको कुछ चेंज करना है, तब्दील करना है, तो यू हैव टू टेक योर ओन एफर्ट्स ऑन योर ओन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फाउंड इन लव विथ प्रोसेस दैट आउटपुट। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, हम वी बिलीव इन आउटपुट नॉट इन द प्रोसेस। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम आउटपुट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैंने किया, व्हाट वाज माय आउटपुट, मैं फेल हो गया या फिर आई वाज नॉट सक्सीडेड, आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। लेकिन जो जर्नी थी, दैट जर्नी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट गिव्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, दैट गिव यू गुड लेसन्स, दैट गिव यू गुड हैप्पीनेस। तो वो हैप्पीनेस एंजॉय करो, डू नॉट मोर फोकस ऑन योर आउटपुट। कई बार आउटपुट इज नॉट इन योर हैंड, बेसिकली इज ऑलवेज रिमेंबर, आउटपुट इज नॉट इन योर हैंड। व्हाट इज योर हैंड इज द प्रोसेस दैट यू फॉलोज। जो भी प्रोसेस है, ये अभी लर्निंग, अभी व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज अ वेबिनार ऑन स्किल डेवलपमेंट। व्हाट यू आर थिंकिंग कि मेरे आउटपुट क्या होगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप शायद वेबिनार के बाद में सोचेंगे कि नहीं, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, आज कुलकर्णी साहब ने कुछ ज़्यादा आज बताया नहीं, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, देन योर आउटपुट इज नॉट गुड। बट द वे यू स्पेंड दिस 45 minutes or 50 minutes or 60 minutes time with me, that process itself is a very good, because you are listening so many stories, you are listening so many things, you are getting refreshed, you are getting entertained, and that process is very important. That process you have to believe, that process you have to remember, और उसे आपको enjoy करना है, because every time when you enjoy yourself, you motivate yourself, you give a additional energy to yourself, and that is very important. Hence, fall in love with the process than output. Dedication of work का डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी काम आप करते हो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से करना चाहिए। एक स्टोरी है अमिताभ बच्चन की, मेरे ख्याल में फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। तो अमर अकबर एंथनी का मेकिंग की स्टोरी है, और ये स्टोरी बताई थी विनोद खन्ना जी ने। विनोद खन्ना जी उनके लेक्चर में बात करते हैं, तो वो बोलते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। तो ही वॉज जस्ट गोइंग ऑन द शूटिंग, विनोद खन्ना जी शूटिंग पे जा रहे थे और उस दिन बहुत ट्रैफिक था, सो ही वॉज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और मोर लेट। तो अब लगभग पौन घंटे से आसपास वो लेट हो गए थे, एंड द शूटिंग वॉज आउटडोर शूटिंग था, इंडोर नहीं था, आउटडोर था।
और एक खुली जगह पे थे, शूटिंग चलने वाला था। तो जब भी विनोद खन्ना वहाँ पर पहुँचे तो ही सी अमिताभ बच्चन वॉज वेटिंग ऑन ए चेयर। वहाँ दोपहर का टाइम था, गर्मी थी, बहुत पसीना बह रहा था। तो पहले तो उन्होंने अमिताभ बच्चन पूरी तरह ड्रेसअप होकर तैयार थे। शायद आपको याद होगा उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के कोट पहना हुआ है, हैट पहनी हुई है, वो पूरा ड्रेसअप करके रेडी हुए थे। तो पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं था, बाद में जब उनको देखा उन्होंने तो ही गॉट शॉक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को बोला कि अरे सर आप बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर एसी में बैठ जाते ना। सॉरी मुझे लेट हो गया, लेकिन आप एसी में अंदर बैठ जाते तो अच्छा होता। आप खाली पीली पौन घंटा बाहर बैठे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप अगर अंदर बैठते तो आपको तकलीफ नहीं होती। अमिताभ बच्चन बोले तकलीफ, हाँ देखिए ना आपके पूरे पसीने छूट रहे हैं, आपके पूरा कोट गीला हो चुका है, आपको पूरा पसीना आ गया है। तो अमिताभ बच्चन बोले पसीना आया मुझे, और उन्होंने फिर हाथ लगाया अपने मुंह के ऊपर, तो उनका हाथ पूरा गीला हो गया था। तो बोले नहीं मुझे तो पता नहीं था, जब आपने अभी बताया कि पसीना आ गया तो मुझे पता चला पसीना आ गया करके। सो ही वॉज इन्वॉल्व सो मच। और तो अमिताभ बच्चन उनको जो बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोले जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो आई डजंट एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि सिचुएशन मुझे जैसे चाहिए वैसे होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पर आप जल्दी आओगे, मेरा काम जल्दी होगा, वहाँ पे एसी होगा, मुझे पसीना नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई एम कमिंग हियर टू वर्क, और जिस भी कंडीशन में काम करना पड़ रहा है उसी कंडीशन में काम करने के लिए मैं वहाँ पर आता हूँ। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द सिचुएशन एज पर मी, जो भी सिचुएशन होती है उसको यूज टू करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सिचुएशन है उसको हम यूज टू करें, अपना पूरा डेडिकेशन काम में दे, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करें। Innovation and creativity is very important again. Innovation is going to be a key factor in our industry, particularly in the engineering industry, and in mainly in coming days, because of you all know things are changing to industry 4.0, then things are changing to various automated factors like artificial intelligence and electric vehicles and all these things. So innovation is going to be a big factor. The people, the industry, the companies, the organization which are innovative in their approach, which are innovative in their thought process, will survive. इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप बहुत कुछ अलग कर सकते हो। तो इनोवेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू बी इनोवेटिव। हमने 5 years में भी देखा लॉट ऑफ इनोवेटिव थिंग्स वी कैन डू ड्यूरिंग द स्टैंडर्डाइजेशन। तो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन क्रिएटिविटी, वी हैव टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंटली। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम अपने अंदर एज ए चेंज लाना चाहेंगे तो इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इन आवर फ्यूचर, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी से मैं अभी बात कर रहा था, व्हाई वी हैव टू इनोवेटिव एंड creative, because we are going to have a changes in our technology in industry like automation, then industry 4.0, then we have electrical vehicles coming up, we have loss form technology coming up, we have high pressure lines coming up, we have fettling automation coming up. So we have to be ready for those changes in the future. To have all this, we need somebody who will lead us from the front, and that is called as a leadership. Leadership is a very important thing to go ahead. Look at this. A great leader do not tell us what to do, they show how to do it. तो बड़े बड़े जो मेन लीडर्स है, they are like that. They doesn't ask us to do, they follow the things and they ask us to follow him. That is very very important. इसमें जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम सर की है। ये लोग बहुत से लोगों ने आपने सुनी होगी, फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं होगी, तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज SL3 का जो सैटेलाइट था, तो वो उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इट वाज द स्टोरी ऑफ 1979, और 1979 में जब वो सैटेलाइट छोड़ने का बात चल रहा था, तो ही वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वो घड़ी आ गई कि अभी सैटेलाइट को लॉन्च करना है। सो द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड,
4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, and then 40 seconds, and 40 seconds, on 40 seconds the computer put a hold on satellite launching. जब भी satellite launching के ऊपर hold कर दिया, then they saw that there is a technical problem in the system, और उसमें कुछ fluid का leakage है. The fluid was getting leakage in the system, so computer has a hold. So Abdul Kalam has his team behind him, around 6 or 7 experts. तो जब भी वो experts से उन्होंने बात की immediately, तो experts ने बोला कि we have enough fluid capacity and hopefully we can able to manage the leakages and let us take a decision कि हम उसे छोड़ देंगे. तो Dr. Abdul Kalam has, though the decision was unanimously as a team, उन्होंने as a team leader decision ले लिया कि let us bypass the computer and launch the satellite. Satellite को launch कर दिया. Satellite was gone, went in the first phase. He has completed the first phase. और second phase में जैसे ही वो satellite गया, it has turned around and instead of going to the orbit, it falls in the Bay of Bengal. So it was a big failure. It was a very big loss to the country. They have lost huge efforts, huge amount, huge investment. और जब failure हो गया तो फिर he was very disappointed and he come back to his room. और जैसे वो room पे आए, he got a call from his director, that particular person, his boss, his leader, Mr. सतीश धवन. सतीश धवन सर का उनको फ़ोन आया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आप आइए, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है. Though we have failed, we have to attend the press conference. We have to give the answers to the public. We have to give the answers to the world. They are waiting for us. तो अब्दुल कलाम सर ने पूछा, ये किया कि अभी तो शायद बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे आपने सैटेलाइट क्यों छोड़ा, तो ऑल द ब्लेम विल कम टू मी, सो आई विल बी द कल्प्रिट. फिर भी वो जाना था. ही गोज विद द वेंट विद द सतीश धवन सर. So Satish Dhawan sir has started the conference and he said, yes, we know we have failed, but we have a good team. We know we have a belief in our team. We have a belief in our technologies, and surely we will come up next year with a success. So please give us 1 year. We know we have done a lot of big mistake in launching this satellite, but our people will learn from the mistake and they will improve, and next year will able to succeed. तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली. He has not asked Mr. कलाम सर to take responsibility. और जब अगले साल जब वो लॉन्च हो गया, when they succeed, then Dhawan sir called Dr. Abdul Kalam sir to wait and take the प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन हिज ओन. तो वो खुद नहीं आए, उन्होंने अब डॉक्टर अब्दुल कलाम को बोला कि आप जाइए एंड यू टेक द press conference and take the credit of the success. So when failure happens, he take the responsibility, and when success come, he give the credit to his team. So that is what is about leadership. So leadership is very important. You need to be a good leader. You have to protect your team. You have to protect your teammates and motivate them always. So leadership is the ability to get extraordinary achievements from the ordinary people. This is very important. You can achieve great things from the great people, but when you achieve something great from the ordinary people, that is a leadership. Is very, very important. I think one of the example I can give here is Mahendra Singh Dhoni. When we won first T20 World Cup, he has taken that challenge of a very new young team and go there and perform and win the World Cup. So at that time, most of the people were very, very small. They doesn't have much experience, doesn't have much credibility, and from those people he has taken a extraordinary achievement of winning the World Cup. So we can think in that way as well. So culture we have already seen it in last our lean management also. We have to change ourselves. Culture is a habit which is inbuilt. Motivation and inspiration. What is motivation and what is inspiration is very important. What I am talking to you right now is a motivation. Motivation is an external and temporary factor. Whatever you are listening today, you will forget tomorrow or day after tomorrow. You will forget what Sandeep has said, because it is just a motivational speech I am giving to you for motivating you for
the personality development. But what is inspiration? Inspiration lasts longer. Inspiration is something which is come from your inside. इंस्पिरेशन क्या है? अंदर से आता है. इट इज़ फ्रॉम इनसाइड, और वो हमेशा आपके साथ रहता है. वो आपको सोने नहीं देता. दिस इज द, आई थिंक द एग्जांपल इज व्हाट द इस नोट के ऊपर हम खत्म करने वाले हैं. दैट इज द ड्रीम आर नॉट दैट विच यू सी इन वाइल स्लीपिंग. वो सपना नहीं है. सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं. सपना वो है जो आपको नींद आने नहीं देता है, जो आपको जगाता रहता है, जो आपको सोने नहीं देता है. दैट इज द ड्रीम एंड दैट इज द इंस्पिरेशन. वो इंस्पिरेशन आप कई लोगों के साथ देखेंगे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम है, धीरूभाई अंबानी है, रतन टाटा है, सचिन तेंदुलकर है. दोज आर द इंस्पायर्ड पीपल. तो इंस्पायर्ड अस टू डू बेटर, इंस्पायर्ड अस टू डू वेल. जैसे सचिन तेंदुलकर को इंस्पायर किया सुनील गावस्कर और कपिल देव ने, सचिन तेंदुलकर ने इंस्पायर किया विराट कोहली ने. अभी विराट कोहली इज इंस्पायरिंग टू आवर न्यू जनरेशन. सो दैट इज इंस्पिरेशन, पीपल कमिंग टेकिंग फ्रॉम इनसाइड, और उसके ऊपर वो मेहनत करते हैं. वो इंस्पिरेशन उनको हमेशा मेहनत करने की प्रेरणा देता है. दैट इज द इंस्पिरेशन. मोटिवेशन वो है जो टेम्पररी है, अभी है, कल नहीं है, परसों है. सो इट्स अ टेम्पररी एंड एक्सटर्नल फैक्टर. इंस्पिरेशन इज नॉट अ टेम्पररी, इट कम्स फ्रॉम योर इनसाइड. सो यू नीड इंस्पिरेशन. मोटिवेशन क्यों चाहिए? बिकॉज मोटिवेशन आल्सो हेल्प्स यू इन थिंकिंग. आपको मोटिवेशन क्यों चाहिए? बिकॉज मोटिवेशन आल्सो हेल्प्स इन थिंकिंग. आप सोचते हैं, आप जो भूल चुके हैं. मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको कोई बहुत नई चीज़ें नहीं है. आपने शायद इसके पहले कई बार इन चीज़ों को सुना होगा, लेकिन अगर उन चीज़ों को वापस याद करना है तो आपको शायद ये मोटिवेशन हेल्प करेगा. मोटिवेशन क्यों चाहिए उसके लिए एक स्टोरी है, और उस स्टोरी ख़त्म करते ही हमारा आज का ये वेबिनार ख़त्म हो जाएगा. स्टोरी है द विंडो. एक कपल है, और इस कपल में एक वाइफ और एक हस्बैंड अपने घर में, नए घर में आते हैं. तो जैसे आते हैं द वाइफ गोज टू द विंडो. विंडो में जाके खड़ी रहती है. तो शी सीज आउटसाइड, बाहर देखती है तो बाहर एक कपड़े टंगे हुए रहते हैं, धुले हुए कपड़े हैं, एक वॉशिंग करके रखे हुए कपड़े में देखती है. सो यू फाइंड दैट द क्लॉथ्स आर नॉट गुड, दोज आर डर्टी. उन्होंने जो धोए हुए कपड़े हैं वो सही तरीके से धोए नहीं है, डर्टी कपड़े हैं. तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, वो शायद वो सामने वाले लॉन्ड्री के आदमी को कपड़े धोना नहीं आता है. द क्लॉथ्स विच आर पुट देयर आर डर्टी, इट इज़ नॉट गुड. जब भी वो औरत वहाँ पर खिड़की पे आती है तो हमेशा वही बात दोहराती है. ऐसे कुछ दिनों के बाद एक बार फिर वो जब वो विंडो के ऊपर आती है तो शी गॉट एन शॉक. वो देखती है बाहर तो उसे आश्चर्य लगता है. तो शी कॉल हस्बैंड को बुलाती है. उसे बोलती है कि देखो वो अभी कपड़े आज बहुत अच्छी तरह से धुले हुए हैं. आई एम सीइंग इट क्वाइट नाइस. दोज आर नॉट डर्टी लाइक अर्लियर. इट आर नॉट क्वाइट गुड नाउ. तो हस्बैंड हंस देता है और आगे आके देखता है और फिर बोलता है कि आज मुझे छुट्टी थी तो मैं सुबह जल्दी उठ गया था. सो आई टेक अ क्लॉथ. उससे मैंने वेट क्लॉथ लिया, एक भिगा हुआ कपड़ा लिया, और जो अपने घर के पूरे विंडोज़ है वो पूरे विंडोज़ को मैंने साफ कर दिया. सो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स शी वॉज लुकिंग एट दोज क्लॉथ अर्लियर विथ अ डर्टी विंडो. और कई बार हमारे साथ भी वही होता है कि हम हमारे नज़र के सामने, हमारे आंखों के सामने कुछ चीज़ों को एक बंद करके रखते हैं. हमारे चीज़ों को एक धूल सी जमा रहती है जिसके वजह से हम जो भी देखते हैं वो हमें गंदा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है. या फिर एक जैसे हम कन्वेंशनल वे से हम थिंकिंग करते हैं कि इसी तरह चीज़ें होने वाली है. इस तरह की मोटिवेशन स्पीचेस, इस तरह की वेबिनार्स, इस तरह की ट्रेनिंग्स आप क्या हेल्प करती है? इट हेल्प्स यू इन वॉशिंग दोज डर्ट. इट हेल्प्स यू इन पुटिंग आउट दो डर्ट. जो हस्बैंड ने काम किया वही काम शायद मैं कर रहा हूँ, या फिर इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह की वेबिनार्स, इस तरह के सेमिनार्स करते हैं. आपके चेहरे के ऊपर, आपके आंखों के सामने से जो डर्ट है वो डर्ट निकालने का काम करते हैं ताकि आप बेहतर आगे देख सके, अच्छी चीज़ों को देख सके. एंड आई होप यू विल एन्जॉय द थिंग्स. वी आर ऑलरेडी finished up with our webinar, and I hope that you all are staying at home, keeping a social distance. You are taking care of your families and definitely helping us. Any questions you can just go and ask if you have any questions. Tomorrow we have a very interesting topic on lost home.
The topic name is the challenges in implementing loss form in India. It is going to be very interesting topic. Anybody have a question, please raise your hand. I hope it is a very interesting topic. It is not a technical topic, but I tried to push upon the things which we need as an industry, as a managers to improve ourselves. और इसका सेकंड पार्ट 2 भी होगा स्किल डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर, बात करेंगे. सो आई थिंक दैट विल बी अनदर टॉपिक विल टेकिंग लेटर ऑन. यस सर. यस यस सर. यस सर. या yes, all are the negative things in front of us right now. Yes, very true. I do agree. Yes, that's a big advantage. That is what I am saying. इस आपने शायद 15 दिन 20 दिन फैमिली के साथ में कभी अपने बच्चों के साथ में कभी बिताए नहीं होंगे. सो यू हैव टू टेक इट एज अ फैमिली, टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग. कि दूसरी बात आप ये भी पॉजिटिव ले सकते हैं कि इन यूएस एंड इन अदर कंट्रीज देयर आर अराउंड 18,000 20,000 पीपल आर डाइड. इन आवर कंट्री देयर आर हार्डली 120 150 पीपल डाइड. सो यू कैन टेक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट कि हमें उस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा है. वी आर वेरी सेफ. Yes, and that will increase your energy to great extent. That is an oxygen you are getting, which you can use in your entire life for when you start again. And as you rightly say, we don't know what will going to happen after the lockdown has been finished. We cannot able to think in that negative way. We have to think in a positive way कि लॉकडाउन के बाद भी कुछ अच्छा जरूर मिलेगा. There will be some good things. और एक अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा. यू आर थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे कि और एक अच्छी बात है कि लॉट ऑफ पोल्यूशन हैज गॉन डाउन. द लेवल्स ऑफ पोल्यूशन हैज बीन गो डाउन ड्रास्टिकली. एंड नाउ नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल द वर्ल्ड इज थिंकिंग दैट इन एवरी ईयर वी शुड हैव अ 15 days लॉकडाउन इन एवरी नेशन, so that we can able to maintain the pollution control. We can able to maintain good level of oxygen. We can maintain to able good environment. So I think some positives are coming definitely.